So today we are going to discuss about the pancreas, which is one of the uh, second largest gland in our body after the liver. So first, pancreas is the heterocrine type of gland where it is called heterocrine because here the both exocrine part and endocrine जो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिलेगी. Exocrine part of pancreas, it is made up of acneal cell, and this acneal cell will secrete the alkaline pancreatic juice that contains the various digestive enzymes, and this pancreatic juice is collected and carried out to the duodenum, where it is can be used. Yes. Next is the endocrine gland, or the endocrine part is the endocrine part of the pancreas. It is made up of a group of cell called as the insulet of Langerhans, where this insulet of Langerhans they are contains different types of cells where the alpha, beta, and gamma cells, and these cells have different they have the ability to produce different hormones. So because of this two nature, it is called as a heterocrine gland, because exocrine gland will produce the pancreatic juice, where if we see this is the diagram of stomach. अगर ये stomach है, this is the duodenum part, and this is the part where the pancreas is present, and this pancreas is able to secrete the alkaline pancreatic juice which is goes into this duodenum. Yes. और ये duodenum से ये आगे प्रोसेस होता है. So here both the type of exocrine gland and endocrine gland दोनों यहाँ पे pancreas के अंदर वो दोनों फंक्शन करता है, इसीलिए it is called as the heterocrine gland. Yes. The location अगर हम देखेंगे तो इट इज़ इन द लूप ऑफ डिओडिनम. जो डिओडिनम है, इफ जो दिस इज द पार्ट ऑफ डिओडिनम, यहाँ पे जो लूप होता है, दैट लूप हियर द pancreas is present. Yes. It is the second largest gland of our body. It has 12 to 15 centimeter long and weight of about 85 grams. The Langerhans insulet of Langerhans have four types of cell, that is alpha, beta, gamma, and delta cell. Mainly the three types of cell where the delta cell is also present. Yes. So the alpha cell, beta cell, gamma cell, and delta cell. The alpha cell they secrete the glucagon. Beta cell secrete the insulin, where the gamma cell produce the precursor of alpha and beta cells, and delta cells they secretes the somatostatin. They secrete the somatostatin. Yes, this is also a hormone. So this is the hormone that is secreted by these cells. वन बाय वन हम ये मतलब ये हार्मोन में दैट इज द इंसुलिन है, दैट इज 70% जो है मेन जो पार्ट है, दैट इज बीटा सेल्स दे सिक्रीट्स द इंसुलिन. ये 70% उस आप बोल सकते हैं उसका पार्ट है इन पैनक्रियास का, ये सिक्रीट करता है. हियर द अल्फा सेल्स दीज आर द 20%, देन डेल्टा सेल इज ऑफ 5%, and the gamma cell is of 5%. So these are the cells which are secreted different hormones in the pancreas. Yes. So mainly we are discussing about the insulin. So insulin and the glucagon both are react in the antagonistic manner. एंटागोनिस्टिक मैनर मतलब एक दूसरे के अपोजिट में हमेशा वर्क करते हैं. अब जो हमारे बॉडी में हम जो भी खाना खाते हैं, इट विल डिग्रेड इनटू द simplest form, that is the glucose or a sugar form, and which is digested, or after the digestion of this जो भी ग्लूकोज मिल रहा है, जो भी ब्लड है ग्लूकोज में, सॉरी जो ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको सेल तक लेके जाने का काम किसका रहता है? इट इज़ द वर्क ऑफ इंसुलिन. यस. सो इट इज़ जो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. यस. जो ग्लूकोज एक्सेस ये लेके जाएगा, और जो एक्सेस जो ग्लूकोज रहता है, इट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन. यस. एंड दिस
ग्लाइकोगन का काम क्या है? इट कन्वर्ट द ग्लाइकोगन इनटू द ग्लूकोज। जब हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, एट दैट टाइम दिस ग्लाइकोजन जो है, दिस ग्लाइकोजन इज डिग्रेडेड और विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोगन, और इस ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज। सो हियर both these hormones, they work in the antagonistic manner, they work in the opposite to each other, so because of that they are called as the antagonistic to each other. Yes. Now, instead of Langerhans, here we are discussing about the insulin. इंसुलिन में अगर हम बात करेंगे बीटा सेल्स की, so the beta cells, they are the polypeptide, and these are the polypeptide types of hormone. Due to the function, it is also called as the hypoglycemic. It is उसका काम क्या है? जो ग्लूकोज है उसका लेवल जो है उसको मेंटेन करना. So here the glucose or the sugar in the presence of insulin, or it convert into the glycogen. Yes, it's act on a target tissue. जो इंसुलिन है और जो ग्लाइकोगन है वो कहाँ एक्ट करता है? So it act to the insulin will act on the livers, muscles and adipose tissues. Yes. द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन. अब जो हम देखते हैं मेन फंक्शन इंसुलिन का क्या होता है? ब्लड वेसल्स में जो हमारा, इफ इट इज़ द ब्लड वेसल्स एंड दिस इज द सेल्स, और ये ब्लड वेसल्स से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको सेल तक लेके जाने का काम किसका होता है? इट इज़ द इंसुलिन. विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलिन द ग्लूकोज विल एंटर इनटू द सेल. यस. सो इंसुलिन इंक्रीजेस यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज. वो क्या कर रहा है? ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है. ग्लूकोज जो भी ब्लड में प्रेजेंट है उसको टिश्यू तक या सेल तक लेके आ रहा है. यस. इट कन्वर्ट्स द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन. अगर सेल की रिक्वायरमेंट हो गई है, देन एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज बच रहा है, देन इट कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजेनेसिस. यस, ग्लाइकोजेनेसिस. कोई भी चीज़ का अगर लास्ट में अगर जेनेसिस हो जाता है तो मीन्स उसका जनरेशन. जेनेसिस मीन्स कोई भी चीज़ का जनरेशन होना. So here the glycogen is generated. So because of this, it is called as the glycogenesis. Yes, this is the process where the glucose is converted into the glycogen. Then it also decrease the gluconeogenesis when other substances like protein etc. also get converted into glucose or sugar. At that time जो at the condition where the अदर सब्सटेंसेज लाइक प्रोटीन, लिपिड्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो भी अगर क्या होना स्टार्ट करेंगे, दे ऑल्सो स्टार्टेड कन्वर्टेड टू इनटू ग्लूकोज. सो एट दैट टाइम इट विल, वो हमारे जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करेगा. सो इट इज़ द वर्क ऑफ द इंसुलिन. यस. देन इट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फैट्स. जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करेगा. एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रहता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइपोजेनेसिस, वेयर इट इज स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू. इट लोअर्स द ब्रेकडाउन ऑफ कीटोन बॉडीज. यहाँ पे क्या हो रहा है? फैट्स बन रहा है. फैट्स जब बनता है तो उसके कारण फैट बन रहा है. मतलब एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसा होता है? जब कई बार ऐसा होता है, एक अभी लॉकडाउन के बाद एक केस आया था कि जब लोगों को लॉकडाउन के बाद स्टार्ट कर दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना या घूमना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो जो आप बोल सकते हैं जो एक्सरसाइज करने वाले एक इंसान के बारे में एक न्यूज़ में आया था कि जैसे ही उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की, मीन्स इतने दिनों से उसने एक्सरसाइज नहीं की, उसके कारण क्या हुआ, उसमें इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं फैट जमा हो गया है. ग्लूकोज हम खाते जा रहे हैं एंड उसको हम जितना डिग्रेड करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ वो क्या होते जाता है, हमारा फैट्स में कन्वर्ट होते जाता है. यस. एंड जैसे ही उसको टाइम मिला उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया, और उससे ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्सरसाइज किया कि उसके कारण क्या हो, एक्सेस ऑफ फैट्स भी जल गया, और उसके कारण जो कीटोन बॉडीज़ थे जो हमारी बॉडीज़ में
फैट के बाद जो डिग्रेड होता है या जो ब्रेक डाउन होता है, इट इज़ ऑल्सो वो भी उसमें ब्रेक होना स्टार्ट हो गया था। सो एट दैट टाइम हमारे जो यूरिन है उसमें कीटोन बॉडीज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। मीन्स जब अगर हम उस यूरिन को टेस्ट करते हैं तो इट इन दैट यू विल सी कि ग्लूकोज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिखेगा, आपको कीटोन बॉडीज भी दिखेगा। सो जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ये जो एक्सिस ऑफ ग्लूकोज उसको फैट में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब फैट में कन्वर्ट कर रहा है वो ग्लूकोज को, तो एट दैट टाइम इट ऑल्सो लोअर्स द ब्रेक डाउन ऑफ कीटोन बॉडीज। वो कीटोन बॉडीज जो फैट के बाद जो ब्रेक डाउन होता है उसको भी वो लोअर डाउन कर देगा। यस, उसको भी वो मेंटेन रखेगा। सो इन दैट केस जो इंसुलिन है इट विल हेल्प हमारे जो ब्लड है, ब्लड का वो ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। यस, सो हियर द इंसुलिन इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को वो इंक्रीज करेगा। देन इट कन्वर्ट द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इट ऑल्सो कन्वर्ट एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इनटू द फैट्स। यस, then it lower the breakdown of ketone bodies. Yes, and other substances like protein and lipids जो भी उसमें था, it converted into glucose। जब आप बोल सकते हैं ये क्या कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द सेंस कि ये ग्लाइकोजन जो है उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जो ग्लूकोज बनता है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो कन्वर्ट होने के जो प्रोटीन्स है, जो लिपिड्स है, जो कन्वर्ट होके ग्लूकोज और शुगर बना रहे हैं, उस प्रोसेस को भी वो लो डाउन करता है। क्योंकि इन दिस प्रोसेस आप देख रहे हो कि जो ग्लूकोज है इंसुलिन क्या कर रहा है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। यस, एंड हियर द ग्लाइकोजन कई जो फैट्स है, फैट्स को भी वो कन्वर्ट, जो ग्लूकोज है उसको फैट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज है उसको लिपिड्स में उसको भी कन्वर्ट कर रहा है। सो इन दैट केस ये क्या है, इनडायरेक्टली ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है हमारी बॉडी में। बट एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो प्रोसेस है, जो उसको बनने की जो प्रोसेस है उसको वो क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। मीन्स दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोजन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज कि वो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है उसको क्या कर रहा है, लो कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। यस, नाउ अब यही जो इंसुलिन है, इंसुलिन का ही कंटेंट अगर हमारे जो ब्लड है, ब्लड में अगर वो प्रॉपर तरीके से रिलीज ना हो, सो इट इससे क्या होगा, इट रिजल्ट इनटू द डायबिटिक कंडीशन, दैट इज द डायबिटीज मिलेटस। यस, इसमें क्या है, दिस इज द इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज वेयर हियर द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन हमारे जो ब्लड है उसमें सिक्रीट होता है। मीन्स एक जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेशन पैनक्रियास से जो इंसुलिन है वो सिक्रीट नहीं होता है, उससे कम अमाउंट में सिक्रीट होता है। जिसके कारण क्या होता है, इंसुलिन अगर कम अमाउंट में बनेगा तो जो शुगर और ग्लूकोज हमारी जो ब्लड में है वो ब्लड में ही रहेगा, वो सेल तक नहीं पहुंचेगा। सो उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ते जाएगा और हमारे जो बोलते हैं कि शुगर लेवल बढ़ते जाएगी। यस, सो दिस इज अल्टीमेटली क्या होता है, जिसके कारण अगर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर रहे, अब ये जो शुगर है ये हमारे ब्लड वेसल्स में अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, जिसके कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो आप बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ सड़ने लगती है उसी तरह से जो वेसल्स हैं वो भी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं। यस, सो हियर जो जिनको शुगर होती है उनको क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो नसें हैं दैट विल ऑल्सो गेट डैमेज। यस, और कई बार ऐसा होता है कि उनको अगर हार्ट अटैक आया है तो भी उन्हें नहीं समझता है कि हार्ट अटैक आया है। इट इज़ बिकॉज द ब्लड वेसल गेट डैमेज बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस ऑफ शुगर इन द ब्लड वेसल्स। यस, सो दिस इज द कंडीशन कि अगर आपका
जो इंसुलिन है वो राइट अमाउंट में आपके जो पैनक्रियाज है उससे रिलीज होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। अब हमें पता है कि जो शुगर लेवल है इट इज़, ये भी दो इसमें चेक किए जाते हैं। एक तो आपका फास्टिंग में चेक किया जाता है जब आपने सुबह उठ के कुछ भी ना खाया हो, और दूसरा पोस्ट मील, एक बार खाना खाइए, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है या वो चेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द पोस्ट मील। सो इट हैज़ सर्टन उसके रीडिंग्स है दैट इट शुड मेंटेन 140 mg पर लीटर पर 100 ml ब्लड। इतना आपका जो ब्लड का शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इतना रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहता है तो इट मीन्स कि आपको शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। यस, सो दिस इज़ द पैनक्रियाज एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू दिस पैनक्रिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, हम अब बुक से पढ़ते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। सो इट इज़ द pancreas. It develops from endoderm. It is an exocrine that is studied in digestive system and endocrine gland. Because of it, it is called as a heterocrine gland. Yes. Then endocrine cells of pancreas from groups of cells called the islet of Langerhans. Yes, जो एंडोक्राइन के जो सेल्स है उसको बोला गया है इंसलेट ऑफ लैंगरहैंड, whereas जो एक्सोक्राइन है उसके एक्नियल सेल है। Yes, there are 4 kinds of cell in the islet of Langerhans which secretes the hormones, that is alpha, beta, delta and gamma cells, or the F cells. So here the alpha cell secrete the glucagon. It stimulates liver from glucogenolysis to increase the blood glucose level. It is the 20% of the cells. Yes. Then beta cell, it has the it ये जो है maximum इसका रोल है, that is beta cell, it will secretes the insulin. It has the 70% जो pancreas है उसका जो secrete करता है, it is the 70% hormone जो है main जो beta cells है ये secrete कर रहे हैं. It stimulate the liver and muscles for glycogenesis. Yes, it's lower the blood glucose level. Then delta cell, it secrete the somatostatin which inhibit the secretion of glucagon and insulin. It also decrease the gastric secretion motility or absorption in digestive tract. Then PP cells or F cell that secretes pancreatic polypeptides. It inhibits the release of pancreatic juice. So these are the different cells, 4 types of cells and their hormones and their role. Then disorder related to pancreas, diabetes mellitus, that is hyperglycemia. Hyperglycemia, it is the, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया. It is most common metabolic endocrine disorder of pancreas. It leads to increase in blood glucose level. This is due to the underactivity of beta cell. Underactivity means कम रिलीज होना है इंसुलिन, जो है जितना अमाउंट में रिलीज होना चाहिए उतना नहीं रिलीज हो रहा है, कम रिलीज हो रहा है, which result in reduced secretion of insulin in children. Such as condition is called insulin dependent diabetes mellitus, that is also called as a type 1 diabetes. And other form of diabetes is non-insulin dependent diabetes, that is the type 2 diabetes. Yes, it is caused due to the failure of insulin to facilitate the movement of glucose into the cell. So अगर कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को इनबॉर्न जो डिसीज़ होती है डायबिटीज़ की, तो इट इज़ जनरली वो उनमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, दैट इज़ टाइप 1 होती है. और जो हमें सर्टन एज के बाद जो डायबिटीज़ होती है, दैट इज़ द टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ वो जो भी इंसुलिन है उसको
वो क्या करता है, ग्लूकोज को हम सेल के अंदर नहीं जाने दे रहा है। सो जो सर्टन एज के बाद जो आपको डायबिटीज़ होता है, दैट इज़ द टाइप 2 डायबिटीज़। और इनबॉर्न जो डायबिटीज़ होता है, इट इज़ द टाइप 1 डायबिटीज़। यस, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट। सो उसमें सेंसिटिविटी लेस हो जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड एज द इंसुलिन रेजिस्टेंट। Then, next, in both disorder, the blood glucose level increases. Some of the glucose is excreted in urine also. इसीलिए हम देखते हैं कि जो कई बार जो शुगर पेशेंट होते हैं, अगर वो कभी टॉयलेट के लिए जाते हैं तो अगर उनका यूरिन देखेंगे तो उसमें कई बार आपको चीटी या फिर एंड्स लगते हुए दिखेंगे, चीटे लगते हुए दिखेंगे। यस, सो इट ऑल्सो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है वो उनकी यूरिन में जो है वो रिलीज होता है। इट ऑल्सो कॉज एक्सेसिव यूरिनेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। डिहाइड्रेशन ऑफ फैट्स इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। मीन्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट भी जो है वो डिहाइड्रेट या ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इट ऑल्सो कॉल्ड या इट ऑल्सो लीड्स टू द कीटोन बॉडीज जो हमारे बॉडी में होती है, इट ऑल्सो गेट डिग्रेडेड एंड इट इज कॉल्ड एज द कीटोसिस। यस, इट ऑल्सो degradation of fats increases the formation of ketone bodies. Administration of insulin lowers the blood glucose level. और यही चीज़ को जब हम क्या करते हैं, या तो गोली लेते हैं या तो किसी को इंसुलिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। सो ये हमारे जो नॉर्मल पैनक्रिया है वो उसको सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस। यस, सो इन दैट केस इट विल लोअर द ब्लड, जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल हो गया था वो उसको लो कर देगा। यस, और जो भी ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स की तरफ चला जाएगा, सेल्स उसको यूटिलाइज कर लेंगे। यस, बिकॉज क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में एक्सेस ऑफ जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल तक नहीं जाता है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर आप देखते हैं सर्टेन ड्यूरेशन के बाद ही उनको बोला जाता है कि आप अपना जो खाना है या कुछ भी आप 2-2 या 4-4 घंटे में खाते रहिए, बिकॉज जो भी उनका ग्लूकोज होता है वो एक्सेस जो है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल तक नहीं पहुंचता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कि वो जब भी खाना खाते हैं उससे पहले वो दवाई लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, ताकि वो जो भी खाना खा रहे हैं वो डिग्रेड होने के बाद या डाइजेस्ट होने के बाद द ग्लूकोज विल गोज इनटू द सेल। यस, सो दिस इज द pancreas or the diabetes mellitus. Now the next gland is the gonads. The gonads are the sex organ, that is the testis and the ovary. Yes, this is the sex organ. The ovary, they produce estrogen. It's secreted by the developing follicle. Estradiol is one of the main estrogen. It is the responsible for the secondary sexual character in the female. Then progesterone. It is secreted by the corpus luteum of the ovary after ovulation. हम देखते हैं कि जब ओव्यूलेशन कंप्लीट होता है, ओव्यूलेशन कंप्लीट होने के बाद जो येलो कलर का जो सब्सटेंस बचा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्पस ल्यूटिकम. It will help to produce this progesterone and this progesterone will maintain जो यूट्रस है उसके नॉर्मल कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो, अगर उसमें एग आया तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको रख सके. यस, सो इट इज़ द हार्मोन एसेंशियल फॉर थिकनिंग ऑफ द यूट्रेन endometrium, thus preparing the uterus for implantation of the fertilized ovum. It is responsible for development of mammary gland during pregnancy and it inhibits uterine contraction during pregnancy. Then relaxin. Relaxin, it is secreted by the corpus luteum of the ovary at the end of the gestation period. It relaxes the cervix of the pregnant female and ligament of the pelvic girdle to easy birth of young one. रिलैक्सिंग का काम क्या है, ये आपका जो भी आफ्टर जेस्टेशन पीरियड, जो भी 9th मंथ या जो भी 9th मंथ 9 डेज जो जेस्टेशन पीरियड है, जो उसका पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद दिस रिलैक्सिंग हार्मोन इज रिलीज एंड दिस रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करेगा, जो यूट्रस है उसकी वॉल को
या सर्विक्स की जो वॉल है जहाँ से जो बच्चा है वो बाहर निकलने वाला है उसको रिलैक्स करेगा, एंड जो लिगामेंट्स है पेल्विक ग्रेडल के उसको भी वो रिलैक्स करेगा ताकि जो बर्थ है वो इजी वे से हो सके। यस, अच्छे से बच्चा बाहर निकल जाए। सो दैट इज द रोल ऑफ द रिलैक्सिंग। देन इनहिबिंग, इट secreted by the corpus luteum, inhibits the FSH and gonadotrophin releasing hormone production। ये दोनों को क्या करता है, ये inhibit करके रखता है। Yes, then next is the testis। Testis is the male sex hormone, which testis secretes the male sex hormone called as the androgen and such as testosterone। This testosterone, it is secreted from the interstitial cells or the Leydig cell by the influence of the luteinizing hormone. Rising testosterone level in blood above normal inhibit LH secretion. Yes, it also responsible for appearance of the secondary sexual hormones such as facial and pubic hair, deepening of voice, broadening of shoulder, male aggressiveness, etc. It also help in maintenance of testes। So this is the hormone और उसके ये role। Then next gland, that is the diffuse endocrine gland। Diffuse endocrine gland, because they are normally, ये जो अगर हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो ये जब उसका काम होता है तभी ये ग्लैंड जो है अपने जो भी हॉर्मोन्स है उसको सीक्रेट करता है। यस, इट इज़ अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। it is the intimate connection between fetus and uterine wall of mother for physiological exchange of material। सारा जो भी चीज़ें मदर खा रही है उसको एक्सचेंज या उसको लेके जाने का काम प्लेसेंटा करता है to the fetus। The placenta is the temporary endocrine gland। During pregnancy, the placenta secrete hormones such as estrogen, progesterone, SCG, and human placental progesterone। This hormone checks the contraction of uterine muscles, and also maintain the thickness of uterine endometrium, thus help in to maintain the pregnancy। So this is the role of the placenta। Yes, it release all the hormone, and it also, this hormone जो है ये proper condition को maintain रखता है for the fitness of the fetus। Yes, then next is the gastrointestinal tract। In the gastrointestinal mucosa, certain cells are endocrine in function। जो हम देखते हैं पूरा जो ट्रैक है हमारा digestive tract, उसमें जो gastrointestinal जो mucosa मीन्स जो layer है, it will have that they have some certain cell have some endocrine in function, means endocrine, they have the ability to secrete some hormone। Yes, these cells produce hormones which play a vital role in the digestive processes and the flow of digestive juice। First is the gastrin। It stimulates the gastric gland to produce the gastric juice। Then secreting, it is responsible for secretion of pancreatic juice and bile from this is not a present, this is the pancreas। यहाँ पे आप उसको करेक्शन कर लीजिए, दिस इज द पैनक्रियास। यस, पैनक्रियास एंड लीवर, जो भी पैनक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस है फ्रॉम पैनक्रियास एंड लीवर से निकालने का काम कौन करता है, इट इज द सिक्रेटिंग। देन द कोलोसिस्टोकाइनिन और द पैनक्रियोजाइमिन पीजेड, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द पैनक्रिया to release its enzyme and also stimulate gallbladder to release bile। So all the digestive enzymes जो भी दिख रहे हैं आपको different सेल से ये secrete हो रहे हैं, and it help the digestive tract to digest the food। Yes, then enterogastron or the gastric inhibitory peptide, it slow down the gastric contraction and inhibit the secretion of the gastric juice। जहाँ पे requirement नहीं होती है तो at that time this gastric inhibitory peptide this will secrete and it inhibit the secretion of the gastric juice। Then kidney, it produce renin, erythropoietin or the calcitriol। Then heart, the atrial natriuretic hormone, it increase the sodium excretion by kidney and reduce the blood pressure। Then hormone therapy,
The hormone therapy is the use of hormone in medical treatment. This applied in pregnancy, menopause, osteoporosis, growth hormone deficiency, insulin resistant cancer, etc. So these are the some extra, आप बोल सकते हैं, these are the some temporary hormones or the extra hormones which get secreted at a particular time. Yes, and this is the hormone therapy. अगर कहीं पे अगर आपका hormone प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता था एट दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर दिस हार्मोन थेरेपी। मीन्स अगर आपका प्रेगनेंसी में प्रॉपर तरीके से हार्मोन सिक्रीट नहीं हो रहे हैं एट दैट टाइम यू कैन गो फॉर दी हार्मोन थेरेपी। नॉर्मल आपका बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल में, सारे हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज नहीं हो रहे, तो और उसकी वजह से हो सकता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर तरीके से वर्क ना करे। सो एट दैट टाइम यू कैन टेक दिस हार्मोन थेरेपी एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, ऑस्टियोपोरोसिस, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। कई बार लोगों की हाइट नहीं बढ़ती है, हेल्थ नहीं बढ़ती, तो एट दैट टाइम यू go for this hormone therapy. So this is the way this hormone can act on our body, and they play a very much important role in our daily routine. Yes, so this is how we have completed our this chapter, that is control and coordination. So hope you have understand this chapter very very well. So one by one अब हम जो हमारा डाउट सेशन है वो स्टार्ट करेंगे. So see you in next video. Goodbye.